بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اس دنیا میں حقیقی تعلق وہی ہوتے ہیں جو وقت، حالات اور ضرورتوں اور مزاجوں کے بدلنے کے باوجود بھی قائم رہیں۔ اس دنیا کی سب سے بدترین خوشی وہ ہے جو کسی کو دکھ دے کر حاصل ہو۔ دوسروں کی زندگی آسان کریے اور اپنی آخرت۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ناراضگی ظاہر کرنا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے۔ حالات اگر برے ہوں تو یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ خدا جب کچھ لیتا ہے تو اس سے بڑھ کر نواز دیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جب بھی اپنے رب سے دعا مانگو تو مقدر مانگنا، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ اس دنیا میں اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کر دے۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ اگر تم اس دنیا میں لوگوں کے دل جیتنا چاہتے ہو تو اپنے آواز میں نرمی پیدا کرو۔ کسی پہ تب تک بھروسہ نہ کرو جب تک اسے اپنے لیے غصے میں نہ دیکھ لو۔ برے انسان کی صحبت سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے، کیونکہ جس طرح تلوار دیکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک ہوتی ہے۔ اس دنیا میں اپنے دوست کو بس اتنے راز بتاؤ کہ کل اگر وہ تم سے دشمنی پر آمادہ ہو جائے تو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ انسان 3 چیزیں کبھی نہیں بھولتا: پہلا، اپنا ٹوٹا ہوا مان، دوسرا، لا حاصل دعا، اور تیسرا، اپنوں کا دیا دھوکہ۔ حضرت علی نے فرمایا کہ کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ وہ لوگ سکون میں رہتے ہیں جو مشکل وقت میں کہتے ہیں کہ میرے لیے بس میرا اللہ کافی ہے۔ جب خواہشات اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دی جائیں تب دعائیں قبول ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ جب خدا سے محبت ہو جاتی ہے تو لوگوں سے دل گھبرانے لگتا ہے۔ اس دنیا میں تنہا انسان کو کبھی تنہا مت سمجھنا، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں، اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر کھو دیتے ہیں۔ اس دنیا میں انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہی ہے، کیونکہ وہ بہت جلدی مان بھی جاتا ہے، پرانی باتیں یاد نہیں کرتا اور کبھی اپنے پاس سے مایوس نہیں لوٹاتا۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ خاتمہ ایمان پر ہو، مگر ہم یہ کیوں نہیں چاہتے کہ زندگی بھی ایمان والی ہو، کیونکہ یاد رکھنا، جیسی زندگی ویسی موت۔ تکلیف اور درد ایک ایسا تحفہ ہے جس میں اللہ کی رحمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنی زیادہ اذیت میں رہو گے، اس لیے یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا پھر مصروف کر لو۔ اس دنیا میں سب سے پرسکون وہ ہیں جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں۔ اس دنیا میں زندگی ہمیں بہت کم وقت کے لیے ملتی ہے، اور کتنے وقت کے لیے یہ کسی کو معلوم نہیں، اور اس کو ہم اپنی مرضی سے کم یا زیادہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، لیکن ہم اس کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ گناہ کو گناہ سمجھتے رہنا چاہیے اور اپنے اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ نہ جانے کون سے حالات میں زندگی کی شام ہو جائے۔ اس دنیا میں آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اسی وقت کریں گے
जब आपके पास दौलत और ताकत हो, क्योंकि गरीब कितना ही खुश इखलाक क्यों ना हो, लेकिन उसके अखलाक को उसकी मजबूरी ही समझा जाता है। अगर जिंदगी इतनी ही अच्छी होती तो कोई भी दुनिया में रोता हुआ नहीं आता। जब इंसान के दिल में मैल, तबीयत में जिद और लफ्ज़ों में मुकाबला आ जाए, तब इंसान जीत तो जाता है लेकिन ताल्लुकात और रिश्ते हार जाते हैं। नफ्स बहुत जालिम है, कभी गुनाहों में मुब्तला करके रब से दूर करती है, तो कभी नेकियों और इबादतों के गुरूर में मुब्तला करके अमाल को ख़राब कर देती है। इसलिए ए मेरे रब, हमें नफ्स के शर से हमेशा महफूज रख। हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी फतेह अल्लाह ताला के खातिर अपनी नफ्स पे काबू पा लेना है। छोटी सोच और तंग दिमाग लोगों के साथ ये मसला होता है कि उनको हमेशा हर चीज़ में गलतियां ही नज़र आती हैं। किसी की गलत बात को याद रखना दिमाग पर बोझ रखने जैसा है। इस दुनिया में रोशनी तारुफ के मोहताज नहीं होती, क्योंकि अगर कोई उसे नहीं जाने तो वो अंधा है। दुनिया में मिलने वाले 3 सबक ऐसे हैं जिनसे बढ़कर कोई उस्ताद नहीं। पहला भूख, दूसरा हार और तीसरा खाली जेब। ये जिंदगी है, इसलिए अगर यहाँ उलझोगे नहीं तो सुलझोगे कैसे, और अगर बिखरोगे नहीं तो निखरोगे कैसे। आज हम ऐसे मुसलमान हैं जो ना बेटी का निकाह खुद पढ़ा सकते हैं और ना बाप का जनाजा, लेकिन सुबह शाम हम मुसलमान ही अपने उलमाओं को बुरा भला कहते हैं। इस दुनिया में कुछ लोग अपने आप को इंसान नहीं बल्कि फरिश्ता समझते हैं, और उनका काम भी फरिश्तों जैसा ही है, यानी दूसरों के गुनाहों और बुराइयों का हिसाब रखना। अपने वो होते हैं जिनको दर्द का एहसास हो, वरना हाल तो रास्ते में आने जाने वाले भी पूछ लिया करते हैं। झूठ बोलना आसान है, छिपाना मुश्किल है। सच बोलना आसान है, सुनाना मुश्किल है। नफरत करना आसान है, झेलना मुश्किल है। इंसान कहलाना आसान है, लेकिन बनना बहुत मुश्किल है। इस दुनिया में कुछ लोग पहाड़ जितनी नेकी करते हैं और कंकर जितना अजर पाते हैं, और वहीं कुछ लोग कंकर जितनी नेकी करते हैं पर पहाड़ जितना अजर पाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला नेकी पर नहीं बल्कि नियत पर अजर देता है। जिंदगी में बार बार सहारा नहीं मिलता, बार बार कोई प्यार से प्यारा नहीं मिलता, इसलिए जो पास है उसे संभाल कर रखना, क्योंकि इस दुनिया में खोया हुआ इंसान दोबारा नहीं मिलता। इस दुनिया में दूसरों के गम से बेगम हो जाना इंसानियत नहीं है। जब अपने ही अपनों को जलील करें तो दर्द ज़्यादा होता है। मतलब के बिना किसी को कौन पूछता है, क्योंकि बिना रूह के तो घर वाले भी घर में नहीं रखते। अल्लाह ताला के हर फैसले में हमारी बेहतरी होती है, इसलिए हमें हर वक्त उसका शिकवा नहीं बल्कि उसका शुक्र अदा करना चाहिए। इस दुनिया में मोहताजगी बहुत बड़ी रुसवाई है, इसलिए ए अल्लाह अपने सिवा किसी का मोहताज ना करना। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, क्योंकि वहाँ वो है जो हमेशा से तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहेगा। करबला मर्द को सजदा और औरत को पर्दा सिखाती है। इस दुनिया में तुम्हारी मुश्किलात चाहे आसमान जितनी ही क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम्हारा यकीन अल्लाह पर है तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। जब लोग गुस्से में हों तो उनकी बात गौर से सुना करो, क्योंकि इंसान की असल हकीकत तभी सामने आती है। इस दुनिया में जिन लोगों की तन्हाइयाँ पाक होती हैं, उनकी दुआएं कभी रद्द नहीं होती। जब रब राजी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐबों का पता लगना शुरू हो जाता है,
اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اس غصے کو پی جانا ایک مومن کی نشانی ہے۔ پریشان مت ہوا کرو، کیونکہ ٹھوکریں بھی انہی کو لگتی ہیں جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہے۔ نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا اور درگزر کرنا اس صدقے سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری ہو۔ زندگی کے ہر موڑ پر اصلاح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتے وہی ہیں جس میں جان ہوتی ہے، کیونکہ اکڑ تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ دنیا میں بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہے۔ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور یقیناً اس سے اچھا کوئی رنگ نہیں۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، انسان کا سکون کہاں چھپا ہے؟ تو ان بزرگ نے فرمایا، غفلت ہو جائے تو سجدے میں، اور غلطی ہو جائے تو توبہ میں۔ رشتہ اگر سچا ہو تو انہیں سنبھالنا نہیں پڑتا، اور جن رشتوں کو سنبھالنا پڑے وہ کبھی سچے نہیں ہوتے۔ اس دنیا میں ایک اچھا انسان کسی سے شکایت نہیں کرتا، اور نہ ہی دوسروں کی خامیاں تلاش کرتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ دن میں رزق تلاش کرو، اور رات میں اسے تلاش کرو جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ خلوص اور اچھائی اپنے الفاظ میں نہیں بلکہ اپنی نیت اور فطرت میں پیدا کرو، تاکہ تم لوگوں کے عیب نہیں ان کی خوبیاں دیکھ پاؤ، اور یقیناً تمہارا یہ عمل تمہیں عزت بخشے گا۔ اس دنیا میں انسان کو اچھی سوچ پر وہ انعام ملتے ہیں جو کہ اسے اپنے اچھے اعمال پر نہیں ملتے، کیونکہ انسان کی سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہانا، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔ ایک کامیاب انسان انہی پتھروں سے اپنی بنیاد بناتا ہے جو لوگوں نے انہیں مارے ہوتے ہیں۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ کیسے پتہ چلے کہ کون زیادہ قیمتی ہے؟ تو حضرت علی نے اس کا جواب دیا کہ انسان میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا ہی قیمتی ہوگا۔ انسان کی ذہنیت بھی کتنی عجیب ہے، بیماری کے خوف سے کھانا تو چھوڑ سکتا ہے، لیکن دوزخ کے خوف سے گناہ نہیں۔ اگر کوئی تمہیں صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہونا، بلکہ فخر کرنا کہ اسے اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے، اور وہ روشنی اسے تم میں دکھائی دیتی ہے۔ اس دنیا میں اچھے وقت سے زیادہ اچھے دوست عزیز رکھو، کیونکہ ایک اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ اس دنیا میں نیک عورت وہ ہیں جو نہ خود کسی غیر مرد کی طرف دیکھے اور نہ ہی کوئی غیر مرد اس کی طرف دیکھ سکے۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اور اپنا فارغ وقت گھر میں ہی گزارو، اور اپنی غلطیوں پر اللہ سے معافی مانگو، پھر دیکھنا تم نجات پا جاؤ گے۔ اپنے صدقات کے ذریعے فکروں اور پریشانیوں کو حل کرو، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہاری تکلیفوں کو دور فرمائے گا، اور تمہارے دشمنوں کے خلاف تمہاری مدد فرمائے گا۔ اچھے لوگوں کو آزمانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ ان کی مثال ہیرے جیسی ہوتی ہے جو ٹھوکر لگنے سے بہت دور چلے جاتے ہیں۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے تو اس کے سامنے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنے کی طرح ہے۔ اس دنیا میں زیادہ مال جمع کرنے والے لوگ اللہ کی نظر میں حقیر ہیں، مگر کثرت سے صدقہ کرنے والے اللہ کی نظر میں محبوب ہیں۔ یا رب، مجھے کسی کے دل پر بوجھ مت بنانا، جو مجھ سے دور ہونا چاہتے ہیں مجھے ان سے پہلے دور کر دینا۔ یا اللہ،
मगरूर करने वाला माल ना दे और मायूस करने वाली गुर्बत ना दे। जब इंसान अपने माँ बाप के लिए दुआ करना छोड़ देता है तो उसके रिस्क में अल्लाह ताला तंगी कर देता है। अल्लाह ताला तुम्हारी शक्ल, सूरत और तुम्हारे माल को नहीं देखेगा, बल्कि वो तुम्हारे दिलों और तुम्हारे अमालों को देखेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रहमत के फरिश्ते उन घरों में दाखिल नहीं होते जिनमें कुत्ता या जानदार की तस्वीर हो। क़यामत के दिन पुलसिरात जहन्नम के किनारे नस्ब किया जाएगा और फ़कत वही लोग पुलसिरात को पार कर पाएंगे जिनके पास उनके नेक अमाल होंगे। इस दुनिया में पानी और नमाज एक जैसी है, क्योंकि जिस तरह पानी मोहताज नहीं पीने वालों का और नमाज मोहताज नहीं पढ़ने वालों की, और दोनों के लिए ही प्यास ज़रूरी है। जिस्म की प्यास के लिए पानी होता है और उसी तरह रूह की प्यास के लिए नमाज होती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई औरत किसी औरत से मिलने के बाद अपने शौहर के सामने उसका हुलिया ना बयान करे, गोया कि वह उसे देख रहा है। हज़रत अनस बिन मालिक ने फरमाया कि एक बार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला अपने उन बंदों से बेहद खुश होता है जो लुकमा खाएं और उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, या पानी का घूंट लें और उस पर अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अपने रब से आफियत और माफ़ी का सवाल करो, क्योंकि मौत के बाद आफियत से बढ़कर किसी के लिए कोई भलाई नहीं है। अल्लाह ताला नरमी करने वाला है और नरमी को पसंद करता है, और नरमी पर इतना देता है जितना सख्ती पर नहीं देता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे ज़्यादा नापसंद अल्लाह ताला को वो शख्स है जो सबसे ज़्यादा झगड़ता हो। जिस दिन तुम किसी रिश्ते को शक की निगाह से देखने लगोगे तो समझ जाना उस दिन से उस रिश्ते की मोहब्बत और इज्जत ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। जब आप अपने रब से मोहब्बत करते हैं तो वो आपके दिलों में सिर्फ उन्हीं लोगों को बसा देता है जो आपकी मोहब्बत के काबिल होते हैं। इस दुनिया में मोहब्बत खूबियां तलाश करती है और बुग़्ज़ ऐब ढूंढता है। जब इंसान समझता है कि वो गलत भी हो सकता है तब वो ठीक होना शुरू कर देता है। किसी का हाल देखकर कोई फैसला ना करना, क्योंकि हर वली का एक माजी और हर गुनाहगार का एक मुस्तकबिल होता है। ये ज़मीन अक्लमंदों से तो भरी हुई है मगर दर्दमंदों से खाली है। अगर इस दुनिया में खालिक की दोस्ती नसीब हो जाए तो मखलूक की दुश्मनी से कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी रब से रब को भी मांगा करिए, क्योंकि वो मिल गया तो कुछ और मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। सजदा छूट जाए तो माफी मुमकिन है, लेकिन अगर इंसानियत का दामन टूट गया तो खुदा भी नहीं मिलेगा। लोगों के कसूर माफ करो, क्योंकि यहाँ हर कोई इम्तिहान में है। इस दुनिया में बर्दाश्त की सलाहियत खुश नसीबों को ही मिलती है, और इखलाक का हुस्न जिस इंसान में आ जाए वो खालिक और मखलूक दोनों में महबूब बन जाता है। दौलत की नुमाइश वही लोग करते हैं जिनके पास दौलत के सिवा और कुछ नहीं होता। इस बेचैन दुनिया में अगर कोई सुकून में है तो यकीनन उसका ताल्लुक अल्लाह ताला से है। जब रिश्ते सच्चे हों तो
उन्हें संभालना नहीं पड़ता, और जिन रिश्तों को संभालना पड़ता है वो कभी सच्चे नहीं होते। लोग खामोश होते हैं लेकिन अंधे नहीं होते, इसलिए लिहाजा बेवकूफ़ बनाने से परहेज करो। ज़बान को काबू में रखो, क्योंकि ये ऐसा तीर है जिसका निशाना अक्सर गलत ही होता है। इस दुनिया में जो किसी का बुरा नहीं चाहता उनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता, और ये मेरे रब का वादा है। जब तुम किसी में कोई ऐब देखो तो उसे अपने अंदर तलाश करो, क्योंकि उसे अगर अपने अंदर पाओ तो उसे निकाल दो। ये इस्लाह की बेहतरीन कोशिश है। बगैर एतमाद के आदमी लंगड़ा है, यानी मंजिल का पता भी होगा लेकिन पहुंच नहीं पाएगा या देर से पहुंचेगा। अपनी सोच को जंग लगने ना देना। बड़े ख्यालों, किताबों और बड़े लोगों से मुलाकात करते रहना। ये दुनिया मसाइल और आजमाइशों की दुनिया है, इसलिए इसमें कामयाब वही होगा जो सब्र करता रहेगा। अल्लाह की याद के बगैर जिंदगी अधूरी है, क्योंकि इंसान सब कुछ पाके भी अधूरा ही रहता है। और जब अल्लाह की याद साथ हो तो मुश्किल से मुश्किल घड़ियों से भी इंसान बाआसानी से सब्र के घूंट पीकर गुजर जाता है। जब अल्लाह ताला अपने किसी बंदे से दोस्ती करना चाहता है तो उसकी ज़बान पर अपना जिक्र और उसके दिल पर अपनी फिक्र जाहिर कर देता है। इस दुनिया में इंसानियत बहुत बड़ा खजाना है, इसलिए उसे लिबास में नहीं बल्कि इंसान में तलाश करो। हर तकलीफ अज़ियत नहीं होती, कुछ तकलीफ़ें ऐसी भी होती हैं जो इंसान को सब्र करने वाला बना देती हैं, और सब्र करने वाले लोग अल्लाह को बहुत पसंद होते हैं। दुश्मनों से ज़्यादा हमारे वो दोस्त ख़तरनाक हैं जो मुनाफिकाना अंदाज में हमारे जज्बात से खेलते हैं। मुश्किल वक्त में दूसरों के काम आया करो, क्योंकि मुश्किल वक्त सब पर आता है, किसी का सब्र देखने के लिए तो किसी का ज़र्फ देखने के लिए। इस दुनिया में आदाब का दरवाज़ा इतना छोटा और तंग होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सर को झुकाना पड़ता है। अपने से अच्छे को तलाश कर, क्योंकि अपने जैसे के साथ तो उम्र ज़ाय करेगा। अगर आपका दिल खालिस और पाकीज़ा है तो दुनिया की कोई भी शैतानी कुव्वत आपको महरूम नहीं कर सकती। इस दुनिया में नफ्स अपने सिवा कुछ नहीं देखती, जबकि हमारी रूह सारा आलम अपने अंदर देखती है। इस दुनिया को धोखे का घर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हकीकत उल्टी नज़र आती है। तौबा करते रहा करो, क्योंकि ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाए कोई नहीं जानता। इस दुनिया में मिसाल देना आसान है, लेकिन मिसाल बनना बहुत मुश्किल। इंसान मजबूत इतना है कि पहाड़ों का सीना चीर दे, और कमज़ोर इतना है कि लफ्ज़ों और लहजों से टूट जाता है। हमें हुक्म तो नफ्स मानने का था, लेकिन हम सब ने अपने ज़मीर मान लिए हैं। इस दुनिया में मर्द की गैरत का अंदाज़ा उसके साथ चलती उसकी औरत के लिबास से लगाया जा सकता है। हमारी ज़िंदगी की ठोकरें बड़ी निराली होती हैं, क्योंकि जब भी लगती हैं या तो किसी की असलियत दिखा देती हैं या फिर कुछ नया सिखा देती हैं। आज की औरत आज़ादी मगरिब वाली चाहती है और हुकूक इस्लाम वाले चाहती है। इस दुनिया में खुशी का ताल्लुक आपके हालात से नहीं बल्कि आपके ख्यालात से है। इस दुनिया में आपकी ज़बान का ज़्यादा चलना अकल के कम होने की निशानी है। जिस लहजे में बात करो उस लहजे में सुनना भी सीखो।
लोगों के महल देखकर अपने आप को गरीब मत समझो, क्योंकि अमीर और गरीब की कब्र एक जैसी ही होती है। कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, मगर हकीकत यह है कि औरत के बगैर कोई घर नहीं होता। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शख्स किसी मोमिन को गमगीन करने के बाद उसे तमाम दुनिया भी अता कर दे, तब भी ये उसका कफ़ारा नहीं हो सकता और ना ही उसको कोई अजर मिलेगा। इस दुनिया में माँ की दुआ अपनी औलाद के हक में बहुत तेज़ी से कबूल होती है। इंसान को उसके जुल्म और गुरूर की सज़ा दुनिया में ही मिल जाती है। गीबत ना करो, क्योंकि ये दोज़ख की खुराक है। इस दुनिया में लोगों को हलाक करने वाली 3 चीज़ें, पहला तकब्बुर, दूसरा हिर्स और तीसरा हसद। गमों को दूर करने वाली बेहतरीन चीज़ तकदीर इलाही पर भरोसा करना है। इस दुनिया में 2 अमाल ऐसे हैं जिनका सवाब कभी तोला नहीं जा सकता, माफ़ करना और इंसाफ करना। लोग अच्छे पढ़ने और अच्छे लिखने वाले को काबिल इंसान समझते हैं, जबकि हकीकत में काबिल वो है जो अच्छा सोचे और अच्छा बोले। इस दुनिया में शऊर का पहला दर्जा खामोश रहने की आदत, दूसरा दर्जा बदतमीज़ी का जवाब ना देना और वहीं तीसरा दर्जा बद इखलाकी का जवाब इखलाक से देना। लंबा धागा और लंबी ज़ुबान हमेशा उलझ जाती हैं, इसलिए धागे को लपेट कर और ज़बान को समेट कर रखें। अल्लाह के आगे झुका करो, फिर देखना वो किसी के सामने तुम्हें झुकने नहीं देगा। दर्द का सजदा हो और अल्लाह ना मिले, ऐसा मुमकिन ही नहीं। हमें पता भी नहीं होता कि हमारा रब किस किस मकाम पर हमें गिनने से पहले ही थाम लेता है। अगर इस दुनिया में तुम्हारी माँ तुम्हारे गुस्से की वजह से तुमसे बात करते हुए डरती है, तो फिर तुम अफसोस करो, क्योंकि तुमने अपने हाथों अपनी मग़फ़िरत को बर्बाद कर दिया। इंसान की मनफी सोच गलत नंबर की ऐनक की तरह ही होती है, क्योंकि हर मंजिल धुंधली, हर रास्ता टेढ़ा और हर चेहरा बिगड़ा हुआ ही नज़र आता है। दूसरों की मदद करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ताकतवर और अमीर हो, बल्कि इसके लिए सिर्फ आपका रहम दिल होना ही काफ़ी होता है। जब आपके पास कोई परेशान हाल, मजबूर या मुसीबत ज़दा आ जाए, तो ये ना सोचें कि ये उसकी आजमाइश है, बल्कि आप ये सोचें कि ये आपकी आजमाइश है। जब कभी भी तुम्हें अपने रिज़्क में कमी नज़र आने लगे, तो कुछ माल अपने अल्लाह के साथ तिजारत कर लिया करो। दुख, दर्द, तकलीफ़ अगर अल्लाह की नाराज़गी होती तो ये नबियों को ना मिलता, बल्कि ये तो एक नेमत है जो अल्लाह का रास्ता दिखाती है।